علماء اکرام، حفاظ اکرام، قراء اکرام، مجمعین ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ، الذي أبدع الأفلاك والأرضين ونزل على عبده كتاب المبين، والذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير الرفيق، والصلاة والسلام على رسوله وسند اولیائہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین، خصوصاً علی امام الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم سامعین، بھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے معنی اور مفہوم بتانے سے قبل، کیونکہ نظم سے نثر کی طرف جب گفتگو ہوتی ہے، اسی طرح جب شعر سے کسی گفتگو کو لبریز کیا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، تو اس میں جوہر پیدا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مطلب کہ کہیں ٹھہرنا نہیں ہے، اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو بڑھتے رہنا ہے۔ جیسے کہ الحمدللہ محسن اعظم مشن نے یہ 10 دن کے پروگرام کو جو شروع کیا ہے، تو جب شروع کیا ہے تو صرف اس میں محسن اعظم مشن کی جو ٹیم ہے، صرف اسی کا کارواں نہیں، یہ پورے سنگھ پور ٹیم ہے۔ تو شروع تو کیا ہے آپ نے، تو منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش۔ تو یہ 10 دن جو ہے، یہ 10 دن صرف 10 دن مقرر بول کے چلے جائیں، ہاتھ چوما کے ہم چلے جائیں، اتنا نہ رہ جائے بول کے چلے جا رہے ہیں ہمارا پھول آپ نے پہنایا، پوری گردن تک پہنا دیا، بلکہ جتنا پھول سے ہمارا استقبال کیا ہے، ویسے ہی ایمان کی روشنی کا استقبال اپنے دلوں میں بھی کریں، تب مانا جائے گا کہ 10 دن کا پروگرام کامیاب ہے، اور ہمارا نظرانہ بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ تو منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش۔ اگر عبداللہ میاں کچھ بتا دیں اور آپ کو کچھ مل گیا تو یہ مت سمجھیے گا کہ بس یہی کافی ہے۔ اگر عبداللہ میاں نے ایک نقطہ دیا ہے تو ہم پوری کہانی کریں۔ اگر قرآن کی ایک آیت کو پڑھا ہے تو ہم اس آیت کے بعد ہر آیت کو پڑھیں۔ میں نے جان بوجھ کے سورہ فاتحہ کو چنا تھا کہ قرآن کی پہلی سورہ کی پہلی آیت کو پڑھوں، تاکہ سنگھ پور والے میرے بعد تمام قرآن کو پڑھیں، کیونکہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھو اور سمجھو، نہ کہ گلدستہ بنا کر کے غلاف چڑھا کر کے بس رکھ دو۔
مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش. شیشے بہت ہیں، لوگ شیشہ پتھر مارتے ہیں تو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے بہت سے جلسے ہوتے ہیں، بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، بہت سی محفلیں سجتی ہیں. ایک چھوٹا سے پتھر، ایک چھوٹا سے انسان یا چھوٹی سی ایسی شے جو گمراہی کو لے کر آئے تو کبھی کبھار پوری محفل کو گمراہ کر دیتا ہے. تو ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ. ہر شیشہ. اکثر لوگ کہتے ہیں نا ایک آدمی غلط ہو، ایک مچھلی غلط ہو، گندی ہو تو پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. لیکن ایسا بھی ہے کہ اگر ایک مچھلی اچھی ہو، ایک شے روحانی ہو، ایک شے صداقت سے بھری ہو، ایک شے امانت اور ایمان کی روشنی سے بھری ہو تو وہ پورے تالاب کو روشن کر دیتی ہے، وہ پورے دھرتی، پورے علاقے کو روشن کر دیتی ہے. تو ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر جو ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا کہنے. کیوں نہ ہم اس رب کا شکر ادا کریں، کیوں نہ کہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمام عالم کو پیدا کیا ہے، کہ اس نے تاجدار نبوت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی جب تخلیق فرمائی تو ایسی تخلیق فرمائی. رسول اعظم کو جب مبعوث کیا تو ان کی بعثت ایسی بعثت ہے کہ جب عرب کی سرزمین پر رسول اعظم تشریف لائے تو عرب کی تاریخ. اور میرے رسول نے جب درس دینا شروع کیا تو درس دینے کا عالم دیکھیے کہ جب درس شروع کیا ہے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے، دین کے احکام کو بتاتے ہوئے درس دینا شروع کیا ہے. ادھر صحابہ کو تعلیم دی جا رہی ہے. ہم نے بدر میں دیکھا، پہلی جنگ میں ہی صحابہ نے بتا دیا حق اور باطل، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. صحابہ نکلے مدینہ سے، تعلیم لیتے لیتے نکلے، دنیا کے گوشے اور کونے میں گئے جہاں جہاں تاریکی تھی اس کو روشن. آج لوگ تعلیم اور علم کی بات کرتے ہیں. یہ میرے رسول کی دین ہے کہ آج دیکھیے عرب سے لے کر چین تک جہاں تک رسول نے بتایا تو آج چین کو بھی دیکھ لیے ترقی. تو ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. تو ہمیں ایسا شیشہ نہیں تلاش کرنا ہے جو پتھر کی چوٹ سے ٹوٹ جائے، بلکہ ہمیں ایسا خواجہ تلاش کرنا ہے کہ جو اجمیر میں آتا ہے تو سارے اجمیر میں. کیسے؟ حضرت غریب نواز کی ملاقات ایک سنت سے ہوتی، ایک سوامی سے ہوتی ہے. اس دھرم کے، دین اسلام کے نہیں ہیں، اپنے دھرم کے سنت ہیں، گرو ہیں. غریب نواز سے ان کا کلام ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، نظر سے نظر ملتی ہے. جانکار ہے، اگرچہ اسلام کے جانکار نہیں لیکن تجربے کار ہے. حضرت غریب نواز ان سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے سوامی جی. مسکرا کے وہ بھی کہتے ہیں کیونکہ تجربے کار ہے، بڑے چمکتے شیشے کی طرح نظر آ رہے ہیں، بڑے چمک رہے ہیں. گرو جی آپ بہت چمک رہے ہیں. وہ سوامی غریب نواز سے کہہ رہے ہیں کہ گرو جی آپ بہت چمک رہے ہیں لیکن آپ کے اس پورے آئینے میں ایک داغ نظر آ رہا ہے. غریب نواز کہتے ہیں اچھا داغ نظر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں جی حضور پورا جسم چمک رہا ہے لیکن ایک داغ دل کے پاس نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں اچھا تو اس کا کیا حل ہوگا؟ آپ نے داغ دیکھا ہے تو بتائیں. کہیں ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، آپ بھی تجربے کار ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ جب آئے ہیں تو اجمیر کی دھرتی میں بڑی سلامتی ہو رہی ہے، لوگ فلاح پا رہے ہیں، کامیابی پا رہے ہیں، تو آپ ہی بتا دیجئے. کہا کہ آپ نے دیکھا ہے تو اس کا علاج بھی آپ ہی کریں گے. غریب نواز کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے تو علاج آپ ہی کریں گے، جب مرض کو پکڑ لیا ہے تو اس کا علاج بھی آپ کریں گے. کہتے ہیں تو میں کیسے کروں، کچھ بتائیے، آپ ہی میری رہنمائی کریے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک چیز کہتا ہوں، دل سے اسے کر لیجئے، شاید میرا یہ مرض ٹھیک ہو جائے.
कहते हैं ठीक है मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे आपके अंदर हर वो सिफत दिख रही है जो एक ऐसे इंसान में होनी चाहिए जिसकी इक्तदा की। हज़रत गरीब नवाज कहते हैं ठीक है, अगर आप इतना ही मुझे मान गए हैं तो बस उस रब को भी मान लीजिए जिस रब की रबूबियत को मैंने माना, उस रसूल को भी मान लीजिए जिस रसूल की रिसालत को मैंने माना, और उन तमाम शख्सियत को मान लीजिए, उन तमाम चीजों को मान लीजिए जिन पर मैं ईमान ले आया। स्वामी जी हैरान हुए, लेकिन क्योंकि मैंने बताया तजुर्बेकार थे, जानकार थे, समझते थे बारीकियों को, कहा ठीक है हुजूर, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं और आपकी सिफात नजर आ रही है, इसलिए मेरे इल्म के मुताबिक जो आप कह रहे हैं वो मेरे लिए भला में है, भलाई में उसके होते हुए, तो आप वो स्वामी जो है वो कहते हैं ठीक है बताइए क्या कहना है। कहते हैं बस कलमा तैयबा को पढ़िए। इधर स्वामी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदा अपनी जबान फैला रहे हैं और उधर गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं। अब स्वामी पूछते हैं सरकार अब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा अब देखिए मुझको। कहा फिर देखा मैंने। जब स्वामी ने देखा तो गरीब नवाज के उस चमकते आईने में कोई दाग नहीं नजर आ रहा। कहते हैं हजरत अब क्या लग रहा है, कैसे अब दाग गायब हो गया? कहा दाग स्वामी जी ये दाग जो था ना वो मेरे अंदर नहीं बल्कि आपके अंदर था। आप में सरापा सराकत थी, लेकिन क्योंकि ईमान की रोशनी नहीं थी तो वह दिल में दाग नजर आ रहा था। जब आप ईमान लाए आए तो वह दाग दूर हो गया। अब आप ऐसा शीशा हो गए हैं कि आपके अगर पत्थर मारा जाएगा तो शीशा नहीं बल्कि पत्थर टूट जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर जो टूट जाए वो शीशा, ऐसा शीशा यकीनन आपने ऐसा शीशा तलाश किया है, क्योंकि सिंहपुर कभी औलिया की छत्र छाया से महरूम नहीं। ये वो सरजमी है कि जहां पर फैजाने हुजूर सरकारे कला, फैजाने बाबा मुल्लत भी मौजूद है, फैजाने आला हजरत भी मौजूद है, फैजाने मुहद्दिस आज़म भी मौजूद है। मैं ये कहने से गुरेज क्यों करूं कि यहाँ फैजाने चिश्तिया, अगर ना होता तो क्या कोई बुजुर्ग की कोई माइक के लाल में ये ताकत है किसी बुजुर्ग का जिक्र किसी स्टेज से कर दे? बगैर गरीब नवाज की इजाजत के मेरी जबान भी नहीं हिल सकती। यहाँ पर फैजाने गौसिया, फैजाने इमाम आजम, फैजाने इमाम तमाम मुहद्दिसीन का भी फैजान और फैजाने हुसैनी भी मौजूद। यही बात है कि आप इस माहौल में मातम करते नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि हुसैन का और उनके नाना का जिक्र सुन रहे हैं। अगर फैजान ना होता तो आप सीना पीट रहे होते। फैजान है तो सीने को नहीं बल्कि सीने के अंदर की तारीकी को। यही सबसे बड़ी दलील होती है गुलाम मोहम्मद। अहले बैत के मुतालिक आपने बहुत सुना है, अहले बैत की फजीलत को बहुत सुना है, हज़रत खातून जन्नत की फजीलत को बहुत सुना है, शोहदाए करबला के वाक़ये को सुना है। लेकिन देखिए इस तमाम चीजों को, जो कुछ भी वाकयात आपके पास पेश आते हैं तकदीर की बुनियाद, तकदीर में लिख दिया गया वो हो रहा। देखने के लिए तो बज़ाहिर लोगों ने देखा, दुनिया की नस्लें बेटों से चलती है। बड़े लोगों ने मुस्तफा जाने रहमत पे तंज करने की भी अरबों ने कोशिश की, लेकिन देखे वो अरब के लोग जो मुस्तफा पे तंज कर रहे थे, हजरत इब्राहिम हजरत कासिम के विसाल पर, देखे कि उनकी औलादें कहाँ हैं, मिट गई, बाकी है कोई पता नहीं। लेकिन गुलशने फातिमा ऐसा सजा है कि दुनिया में जिस कोने में चले जाओ फातिमा के लाल नजर आ जाए। और जिस मुल्क में भी फातिमा के लाल पहुंचे हैं तो सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं, हर धर्म वालों को फैजान से बांटा है। अजमेर की धरती पर जब आप गरीब नवाज के आस्थाने के करीब जाते हैं तो वहाँ हर धर्म के लोग मौजूद हैं। किछोछे की सरजमी पे जाते हैं तो हर धर्म के लोग मौजूद हैं। आप चले जाइए दुनिया के बर्रे सगीर में
کئی علاقوں میں جہاں جہاں گلشن فاطمہ کے پھول آرام کر رہے ہیں وہاں وہاں لوگ فیض پا رہے ہیں. پتا چلتا ہے یہ فیض جو ملا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان ہے اور یہ فیضان جو ملا ہے یہ میرے رب کی عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو کہا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یقیناً تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے بتا دیا کہ مصطفیٰ کے نواسوں کو باقی رہنے کے لیے ہتھیار کی حکومت کی طاقت کی ضرورت نہیں بلکہ ان کے لیے ایمان کامل کا ہونا باقی. ایمان کامل ہے تو انسان باقی ہے, ایمان کامل نہیں ہے تو انسان کی تمام چیزیں باقی ہیں لیکن انسان باقی ہے. آج یزید کا لوگ کہہ سکتے ہیں کہ محل باقی ہے, لوگ کہہ سکتے ہیں یزید کا لباس باقی ہے, لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کے دستاویز باقی ہے, لیکن کوئی کہے گا کہ یزید کی شخصیت باقی ہے. لیکن جہاں جہاں چلے جاؤ ہر مومن کے دل میں بلکہ ہر انسان کے دل میں میرے حسین کی عظمت باقی ہے. کیوں نہ باقی ہو جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے, جس کے بابا ولیوں کے سردار, اگر خیبر کی بات آئے تو ایک ہاتھ سے خیبر کو, جس کا بھائی ایسا کہ رسول کریم فرما رہے ہیں کہ دو مسلمان گروہ میں صلح کرا, جس کے نانا نبیوں کے تاجدار, جس کا بیٹا زین العابدین جب امامت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو تمام ولی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں, جس کی نسلوں کا یہ عالم ہے کہ پیدا ہو رہا ہے نسل میں تو غوث اعظم پیدا ہو رہا ہے, غریب نواز پیدا ہو رہا ہے, مخدوم پاک ایسی شخصیت پیدا ہو رہا ہے. تو کیوں نہ کہیں ہم کہ آج جو کچھ اس ملک میں ہی نہیں اس دنیا میں ہے وہ اہل بیت کا صدقہ ہے. آج ایک مسئلہ ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز میں آپ ہوتے ہیں تو ایک مسئلہ آتا ہے کہ خیال آنا الگ الگ, نماز شروع کی اللہ اکبر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا, خیال آنا, نبی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اب نبی کی نماز سوچیے کیسی ہوگی. نبی سجدے میں ہے, حسین پشت پر ہے, سجدے سے اٹھنے میں تاخیر ہو رہی ہے, حسین پشت پر ہے, حسین ہٹ گئے پشت سے, نبی نے حالت بدل, نبی سجدے میں ہے, حسین پشت پر ہے, سجدے سے اٹھنے میں تاخیر ہو رہی ہے, حسین نبی کے خیال میں وہ اشارہ کر رہا ہے, حسین نبی کے خیال میں ہے, حسین پشت پر ہے, نبی نے سجدے سے اٹھنے میں تاخیر. امام حسین سید الشہداء ہے کہ نہیں, مگر امتی, ولیوں کے سردار ہے کہ نہیں مگر امتی ہے, صادق ہے, امین ہے, مجاہد ہے مگر امتی ہے, رسول اعظم کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں لیکن امتی ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کے گلشن کے پھول ہیں مگر امتی ہے, مولا علی کی بازوؤں کی شجاعت ہے مگر امتی ہے, حضرت صدیق اکبر کی امانت ہے مگر امتی ہے, فاروق اعظم کی عدالت ہے مگر امتی ہے, عثمان غنی کی سخاوت ہے مگر امتی ہے, حضرت علی کی شجاعت ہے مگر امتی ہے, حضرت حسن کا بھروسہ ہے مگر امتی ہے, حضرت زین العابدین کے والد ہیں مگر امتی ہے, غوث اعظم کے امام ہیں مگر امتی ہے, خود بھی امام ہے, باپ بھی امام ہے, بیٹا بھی امام ہے, بھائی بھی امام ہے, نانا بھی امام ہے مگر امتی ہے. اور نبی کے خیال میں, نبی نماز میں ہے, سجدے میں ہے, ابھی پشت سے ہٹے نہیں سجدے سے اٹھے, پشت سے ہٹے سجدے سے نبی, دوسری حالت کیا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر امتی کی عبادت میں نبی کا خیال آ جائے, نماز میں خیال آ جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. امتی کی عبادت میں, امتی یا نماز کی حالت میں نبی کا خیال آنے سے امتی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, نبی نماز میں ہے اور امتی کا خیال آ رہا ہے, نبی نماز میں ہے
और उम्मती का ख्याल आ रहा है। अब कोई है भाई का लाल जो ये बता दे कि मुस्तफा जाने नमाज। अगर ये मानेंगे तो ये हमला हुसैन पर नहीं, हुसैन की अजमत में नहीं, बल्कि नबी की जात, नबी की इबादत में। और वो जो तालीम देने वाला हो, जो मौलवी में हकीकी हो, अगर हम उसे ही का इनकार कर दें तो हमें मिला क्या? नबी नमाज में है, ख्याल हुसैन का। और कहा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि नबी का ख्याल नमाज में आए तो नमाज फासिद हो जाती है, टूट जाती है, वो फेल खराब हो जाता है। और नबी के ख्याल में हुसैन है, तो अब दो ही चीजें हो सकती हैं। एक तो जान लो कि नबी के ख्याल, नबी इबादत में हो, नबी के ख्याल में दुनिया नहीं है। हमारे ख्याल में हो सकती है, पर नबी के ख्याल में दुनिया नहीं है। और नबी के ख्याल में हुसैन है। तो अब अगर नबी के ख्याल में दुनिया को मानोगे तो हमला हुसैन पर नहीं, नबी की नमाज पर होगा। तो पता चला कि दूसरा ऑप्शन बचता है कि नबी के ख्याल में सिर्फ दीन है, जो ही हकीकी मसला है। और नबी की ख्याल में हुसैन है, और मसला यह है कि नबी की ख्याल में इबादत में सिर्फ दुनिया नहीं, दुनिया नहीं बल्कि सिर्फ दीन हो सकता है। तो मानना पड़ेगा कि मान लो उस बात को कि जो अजमेर का ख्वाजा कहता है कि दीन सुभान अल्लाह सुभान। नहीं मानोगे तो ईमान से जाओगे, मान लोगे तो फलाह को पाओगे। नहीं मानोगे तो कुरान कहेगा बहुत बड़ा अज़ाब है, मान लोगे तो कुरान कहेगा फकद फाज़ा फौज़न अज़ीम। ये बात हज़रत वारिस से पाक से पूछा गया कि हजरत किसी ने नमाज पढ़ते देखा नहीं। अब एक बात बताइए, पूछने वाला भी बेवकूफ यही कहना चाहिए कि हजरत हमें आप नमाज पढ़ते दिखाई नहीं। जुमला ये होना चाहिए कि हमको नमाज पढ़ते अब दिखाई नहीं। पूछ रहा है कि आपको देखा नहीं। कहे ठीक है, गुलाम है उनका, उतनी मारिफत और समझ नहीं है। लेकिन उसी दौरान सवाल के बाद कुछ ही लम्हों बाद या कुछ दिनों बाद कमो बेश गौसे आजम का एक शहजादा तशरीफ, जिसको दुनिया अली हुसैन अशरफी मियां अल मारूफ आला हजरत शरफी मियां आपकी तशरीफ आवरी हो रही है। हजरत वालिद से पाक फरमाते हैं लाओ, अभी किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, कह रहे लाओ लोटा लाओ वजू करो। नमाज की तैयारी के लिए पहुंच गए, हजरत शरीफी मियां के पीछे नमाज पढ़ी। बाद में उस खादिम ने पूछा, हजरत वाकया बड़ा लंबा है, मैं शॉर्ट में बयान कर रहा हूं, आपने उनके पीछे पढ़ ली लेकिन आज तक मैंने किसी और इमाम के पीछे पढ़ते नहीं। क्या बात है, क्या मसला है? ये कोई अरब के खास आसमान से उतर के आए थे क्या कि सिर्फ आपने इन्हीं के पीछे पढ़ा और दुनिया के और इमाम साहब हैं, ये हैं, वो हैं, उनके पीछे नहीं पढ़ा? कहा देखो मैं 70 के ऊपर का हो गया, अब मेरी टांगे ज्यादा चल नहीं पाती कि दौड़ूं मैं, चलूं बहुत दूर तक। सिर्फ जरूरियात जिंदगी से जो मुताल्लिक चीजें हैं और जो मुझ पर फर्जो वाजिब है वही कर सकता। कहा फिर भी हजरत माजरा क्या? कहा अगर इमाम साहब हमारे जो हैं उनके पीछे जब मैं नियत बांधता हूँ तो कहते हैं अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जबान से तो सूरह फातिहा होता है, लेकिन जब मैं दिल की तरफ देखता हूँ, क्योंकि थोड़ा से मैं भी दिल की तरफ देख लेता हूँ, तो जब दिल की तरफ मैं देखता हूँ और इमाम साहब सूरह फातिहा जबान से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नमाज है ये जाहिर और बातिन के मजमुए का नाम है, और मैं दिल को देख पा रहा हूँ, तो मेरे लिए मसला खड़ा हो जा रहा है। मैंने नियत बांधी, नियत करता हूँ मैं 2 रकात या 4 रकात नमाज, पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला की हूँ मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इमाम के। अब पीछे इस इमाम के, इमाम सूरह फातिहा पढ़े लेकिन दिल में आ रहा है नमाज खत्म करना, उसके बाद लेने जाना है गोश्त, फिर जाना है दर्जी के पास, कपड़े देने हैं बच्चों के लिए, उसके बाद आना है तो मछली लाना है, मछली पकाना है। अब्दुल्ला मियां आए, ऐसे मान लीजिए पला आया है, कोई आए, कोई भी हजरत आए हैं, उनको कबाब खिलाना है, उनको बिरयानी खिलाना, उनको ये करना है, तो इमाम पता नहीं कहां से कहां। उसके बाद पीछे मैंने नियत की थी, पीछे इस इमाम के, इमाम साहब चलते जा रहे हैं बनिया की दुकान पे, इमाम साहब चलते जा रहे हैं गोश्त की दुकान पे, इमाम साहब चलते जा रहे हैं कपड़े की दुकान पर, वो चलते जा रहे हैं, मैं चलता जा रहा हूँ, दौड़ते जा रहे हैं। मैं बूढ़ा आदमी कहाँ कहाँ दौड़ूं?
मैं इमाम के पीछे कहां था। और अशरफी मियां जब आए तो इन्होंने कहा अल्लाहु अकबर। इधर अल्लाहु अकबर कहा, इनका जाहिर, इनके जुबान पर सूरे फातिहा है और इनका दिल कुर्बे इलाही। इधर अशरफी मियां कुर्बे इलाही की तरफ जा रहे हैं, उधर मैं पीछे उसी मारिफत। न इधर भागना पड़ा, न उधर भागना पड़ा, न बनिया की दुकान पे, न गोश्त की दुकान पे, न कपड़े की दुकान पे, सीधे कुर्बे इलाही। तो बाबू इमाम अशरफी मियां जैसा लाओ, तुम्हें मैं नमाज पढ़ता दिखलाई नहीं, वरना मदीना चले जाओ। तो कहना ये चाहता हूं कि नमाज में ख्याल इमाम हुसैन का, ये ख्याल जो है नबी की नमाज में है। और अगर नबी की नमाज में ये तसव्वुर कोई कर ले कि नमाज इमाम हुसैन उम्मती है, आलम में दाखिल है, आलम में दाखिल करने के बाद अगर ये कोई कह दे कि नबी की नमाज में दुनिया का ख्याल है, तो फिर उसके ऊपर क्या फतवा लगेगा, उसके ऊपर क्या मसला आएगा, वो उलमा जानते हैं, बड़ा मसला है। लेकिन अगर दूसरी सूरत जो मेरे फौजा ने अख्तियार किया है कि दीन अस्ल हुसैन, यानी अगर इमाम हुसैन को दीन मुराद लिया जाए कि नबी के ख्याल में दीन ही दीन है और इमाम हुसैन नबी के ख्याल में है, तो कोई मसला नहीं आएगा। और मसला क्यों आए, अरबी नहव का एक कायदा है कि ज़ैदुन आदिलुन, ज़ैदुन आदिल, ज़ैद आदिल करने वाला, ज़ैद आदिल है, आदिल करने वाला, इसमें फाइल है। अदल करते 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 बार बार इंसाफ करते, अदल माने इंसाफ होता है, इंसाफ करते 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 एक ऐसा दौर आता है कि लोग कह देते हैं, नहव के इमाम भी, अरे यार ज़ैदुन आदिलुन कहने से अच्छा है, बोलने में भी खिंचावट हो रही है, ज़ैदुन आदिलुन, क्योंकि सिफते अदल ज़ैद पर इतनी गालिब आ गई है, इतनी गालिब आई है कि माने मज़दरी जो है, मज़दर का माना उसमें पाएगा। तो ज़ैदुन आदिलुन इमाम हुसैन मदीना से करबला तक दीन के लिए, बचपन गुजारा दीन के लिए, जवानी गुजारी दीन के लिए, दीन के लिए ही करबला से मदीना से करबला गया। रास्ते में जितनी मुश्किलात आई उस पर सब्र किया, दीन ही के लिए इमाम हुसैन कदम से कदम बढ़ाते जा रहे हैं, दीन के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, दीन को बचाने के लिए, दीन को फैलाने के लिए, दीन को अपनाने के लिए, दीन को लोग की तबलीग करने के लिए, दीन के अहकाम की तबलीग करने के लिए, दीन के अहकाम पर लोगों को अमल कराने के लिए इमाम हुसैन मदीना से करबला तक गए। करबला में अपने खानदान को फी सबीलिल्लाह कराया दीन के लिए, अली अकबर को लुटाया दीन के लिए, अली असगर को लुटाया दीन के लिए, कासिम को लुटाया दीन के लिए, हज़रत अब्बास को लुटाया दीन के लिए, 72 शहदा को लुटाया दीन के लिए, हज़रत सकीना की कुर्बानी दी दीन के लिए, खुद अपनी जात की कुर्बानी दी दीन के लिए। हज़रत इमाम हुसैन ने दीन के लिए इतना काम किया कि वो जो सिफत दीन को बचाने की थी वो ऐसा हो गई कि इमाम हुसैन सरापा दीन हो गए। कहने वालों ने कह दिया दीन अस्तु हुसैन, वाह वाह, सुभान अल्लाह, दीन ही नहीं। अब करबला के मैदान में हज़रत फातिमा ज़हरा का लाल, किसका लाल है, कौन है फातिमा, वो फातिमा ज़हरा कि जब उनकी फजीलत की बात तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं, पूछते हैं कौन है फातिमा ज़हरा, आप फरमाते हैं फातिमा बुज़तु मिन्नी। आप जाइए छानिए कि इस तरह का कौल किसके लिए है। फातिमा बुज़तु मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, सारा मसला ही हल कर दिया। फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। आगे हदीस में रसूल फरमाते हैं कि जो फातिमा को नाराज करेगा वो मुझे नाराज करेगा। गोया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के मसले पे तरीके पे चलते हैं कि हर बात के दो रुख होते हैं, जो फातिमा को खुश करेगा वो गोया मुझे खुश करेगा, जो फातिमा को नाराज करेगा वो मुझे नाराज करेगा। फातिमा की खुशी में ही मेरी खुशी है, फातिमा की नाराजगी में मेरी नाराजगी है। अब देखिए हजरत फातिमा ज़हरा के किरदार को इमाम हुसैन करबला में मौजूद है, दोनों तरफ नमाजी हैं, इधर भी इमाम है उधर भी इमाम नहीं है। इमाम ज़ाहिरी इमाम बातिनी को ले लीजिए, इमाम मजाजी इमाम हकीकी को ले लीजिए, लेकिन इमामत दोनों तरफ हो रही है, नमाज दोनों तरफ हो रही है।
नमाज वाली इमामत दोनों तरफ हो रही है, उधर भी नमाज पढ़ी जा रही है, इधर भी नमाज पढ़ी जा रही है, उधर भी कलमा पढ़ने वाले हैं, इधर भी कलमा पढ़ने वाले हैं, उधर भी रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, इधर भी रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, उधर भी आका को रसूल तस्लीम करने वाले हैं, इधर भी आका को रसूल तस्लीम करने वाले हैं, उधर भी हक कहते हैं कि हम हक वाले हैं, इधर भी कहते हैं हम हक वाले हैं, उधर भी कलमे तैयबा पढ़ रहे हैं, इधर भी कलमे तैयबा पढ़ रहे हैं, उधर कुरान के ऊपर ईमान रखते हैं, इधर भी कुरान पर ईमान रखते हैं, उधर भी अहकाम पर ईमान रखते हैं, इधर भी अहकाम पर ईमान रखते हैं, उधर भी देगर नबियों पे ईमान रखते हैं, इधर भी देगर नबियों पे ईमान रखते हैं, उधर भी फजाइल को सुने बैठे हैं, इधर भी फजाइल को सुने बैठे हैं, लेकिन अब पता कैसे चले इनमें हक पर दोनों ही तरफ है, दोनों ही तरफ है, और बीच वाला तो बेचारा परेशान है, जाए किधर, इधर भी मौलाना साहब, इधर भी मौलाना साहब, हम तो फंस गए हैं बीच में बैठ कर। दोनों ही तरफ खुद को मुसलमान कहने वाले लोग हैं, कुरान पर ईमान रखने वाले लोग हैं, रसूल की रिसालत को तस्लीम करने वाले लोग हैं, खुदा की वहदानियत पर ईमान रखने वाले लोग हैं, कुरान की हक्कानियत को तस्लीम करने वाले लोग हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को तस्लीम करने वाले लोग हैं, हजरत फारूक आज़म की अदालत को तस्लीम करने वाले लोग हैं, हजरत उस्मान गनी की सखावत को तस्लीम करने वाले लोग हैं, मौला अली की शुजाअत को तस्लीम करने वाले लोग हैं, हजरत हसन की सीरत को तस्लीम करने वाले लोग हैं। अब देखिए दोनों ही तरफ हैं, इस्लाम के अहकाम को भी मानने वाले हैं। अब फैसला करें कैसे कि अल्लाह किसकी तरफ, ये तो कोई फैसला कर सकता है कि बनिया किसकी तरफ है, दर्जी किसकी तरफ है, कसाई किसकी तरफ है, लेकिन ये कैसे फैसला हो कि अल्लाह किसकी तरफ है। गलत बताया तो डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर, सही बताया तो फिर आप पूरा मैच ही नहीं। अब अल्लाह किसकी तरफ है, इस बात का फैसला कैसे हो। तो जब रसूल करीम ने फरमाया कि जब तुम परेशान हो जाओ, फैसला ना कर सको, तो फिर अपने बीच में एक अजीम चीज को देखो जो मेरा ऐसा मौजिज़ा है जो कयामत तक बाकी है। क्या है वो? कुरान। अब कुरान ही से फैसला करते हैं, ऐ कुरान तू ही बता दोनों में हक पर कौन है। अगर मैं कहूंगा तो कहेंगे बेटे हैं, औलाद है, इतरत में है, मौलाना कहेंगे तो कहेंगे अरे नहीं, कहेंगे तो नौकरी कैसे बचेगी, आप कहेंगे तो कहेंगे अरे ये तो अंधभक्त। तो चलो अंधभक्त मौलाना और अब्दुल्ला मियां को छोड़ करके कुरान से पूछते हैं, वो कुरान जिस पर सारे फिरके भी मुत्तफिक है, 73 के 73 मानते हैं कि कुरान हक है। वो अलग बात है कुरान को अपने एतबार से चलाना चाहिए, चला नहीं पाते पर चलाना चाहिए। अब कुरान बैनल इफराती व तफरीत है, ना ही उसमें इफरात है, ना ही तफरीत है, ना ही ज्यादती है, ना ही कमी है, जैसा का जैसा नाजिल हुआ वैसा ही करें। अब एक कुरान तू ही बता कि हक पर कौन है। इधर भी कलमा पढ़ रहे हैं, उधर भी कलमा पढ़ रहे हैं, इधर भी ईमान को कह रहे हैं हम रखते हैं, इधर भी कह रहे हैं ईमान रखते हैं, इधर भी रसूल की हक्कानियत को मानते हैं, उधर भी रसूल की हक्कानियत को मानते हैं, तो हक पर कौन है। तो कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अब देखो करबला के मैदान में सब्र पर कौन है, सब्र और इस्तिकामत किसकी तरफ है, जिसकी तरफ सब्र है उसी की तरफ रब है। सुभान अल्लाह। लोगों ने देखा सब्र कासिम की तरफ है, सब्र अब्बास की तरफ है, सब्र अली असगर की तरफ है, सब्र अली अकबर की तरफ है, सब्र मुहम्मद शोहदा की तरफ है, सब्र हुसैन की तरफ है। जिधर सब्र है उधर ही रब है, और जिधर रब है उधर ही नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शुहदाए करबला, जश्न शुहदाए करबला, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। पता ये चला कि हमने ज्यादा तावीली नहीं की कि अरे फला मौलाना से पूछो या आला हजरत से पूछो या मुहद्दिस आजम से पूछो, तो कहते हैं ये तो अपने ही आदमियों को बता रहे हैं, जरूर मोटा नजराना इनको मिला है खान का। या मौलाना कहेंगे तो कहेंगे जरूर इनको लग रहा है तगड़ा लिफाफा आया, या शायर इस्लाम कहेंगे तो कहेंगे अरे अब लग रहा है लंबा प्रोग्राम के चक्कर। तो हमने ऐसे ही बात की दलील दी कि कुरान ना ही किसी का नजराना कबूल करता है और नहीं नजराना देने की हमारी हैसियत है।
हाफिज कुरान जब कुरान को याद करता है तो उसको याद कुरान को जो पढ़ता है उसको पढ़ने पर पैसा नहीं दिया जाता, वक्त पर पैसा दिया जाता है। कुरान की हम कीमत दे ही नहीं सकते। कुरान सिर्फ उनसे राजी है जो हक पर सदाकत पर है। खुद कुरान कहता है कि ईमान लाओ सच्चों के साथ हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हो गया। इमाम हुसैन पर ईमान लाने वाले सच्चे हैं, सच्चों के साथ हैं। सच्चों के साथ रहने की सोबत ये है कि कुरान की देखिए इमाम हुसैन के साथ करबला में गए हैं, पता नहीं है कि हम शहीद होंगे। इमाम हुसैन फरमाते हैं, रास्ते में भी तंबीह करते हैं कि जाना चाहो तो लौट जाओ, नहीं हुजूर आपके साथ चले जाए। इमाम हुसैन की खिदमत में, अरे भाई कोई मेरा खादिम मेरी खिदमत करते मर जाए तो क्या हम उसे मुर्दा ना कहें? कोई मेरे अब्बा की खिदमत करते मर जाए तो क्या मुर्दा नहीं कहा जाएगा? मौलाना की इनकी उनकी खिदमत में मर जाए करते करते तो उसे मुर्दा नहीं कहोगे कि अरे इसको मौत नहीं आई है? इमाम हुसैन के साथ चलते गए, करबला पहुंचे, करबला में रहे, सारी मुश्किलात को देखा, सब्र किया, इमाम हुसैन के साथ रहे। आशूरे का दिन आ गया, 10वां दिन आ गया, इमाम हुसैन के साथ है, कदम से कदम मिलाए हैं, कदम डगमगा नहीं रहे हैं। इमाम हुसैन तंबीह भी कर रहे हैं, चले जाओ अगर जाना है, नहीं फर्जंदे रसूल हम आपके साथ हैं। जहां जाने में इतनी आफियत नहीं है जितना आपके साथ रहने में, जाने में उतना नफा नहीं है जितना आपके साथ रहने में है। हम आपके साथ हैं, करबला में एक एक करके जा रहे हैं। इमाम हुसैन की खिदमत के खादिम इमाम हुसैन है। यजीद पूछना अहमद तुम क्यों आए? अरे भाई हम खादिम इमाम हुसैन। आओ, जंग लड़ते गए, शहीद होते गए, जंग लड़ते गए, शहीद होते गए। पूछा गया कौन हो? हम खादिम इमाम हुसैन हैं। पूछा गया कौन हो? हम गुलाम मोहम्मद हैं। पूछा गया कौन हो? हम खादिम अली हैं। पूछा गया कौन है? हम खादिम अबू बकर सिद्दीक हैं। पूछा गया कौन हो? हम खादिम फारूक आजम हैं। पूछा गया कौन हो? हम खादिम हजरत उस्मान गनी हैं। पूछा गया कौन हो? हम खादिम मौला कायनात हैं। पूछा गया कौन हो? हम खादिम हजरत इमाम हसन मुज्तबा हैं। पूछा गया कौन हो? हम अहले बैत के खादिम हैं। कह दिया हम अहले बैत के खादिम हैं। एक एक करते आते गए, 72 शहीद हो गए। सबने कहा हम अहले बैत के खादिम हैं। अब यजीदी भी चौके हुए हैं, यार ये कैसी खिदमत है कि ये कुर्बान हो जा रहे हैं। एक हम हैं यजीद की खिदमत करते हैं, लेकिन यजीद के लिए अपनी जान नहीं दे सकते। रुपया के लिए जान देने आए थे, यजीद के लिए चैलेंज से कह सकता हूँ किसी भी उस फौज में खड़े आदमी की जेब गरम ना। सबको गरम की गई थी, वाकयात बड़े लंबे गरम जेब करके एक तरफ आए और दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं खादिम अहले बैत, मैं खादिम अहले बैत, मैं खादिम अहले बैत कहते चले आ रहे हैं। तो ये माजरा क्या है? हजरत इमाम हुसैन की जात को देखिए, उनकी खिदमत गुजारों की अहमियत को देखिए, उनके यकीन को देखिए, उनका यकीन इमाम हुसैन पर देखिए, उनका यकीन अहले बैत पर देखिए कि वो करबला के मैदान में शहीद होते जा रहे हैं और बस इतना कह रहे हैं मैं खादिम मुस्तफा हूँ, खादिम इमाम हुसैन हूँ, खादिम अहले बैत हूँ। ये कह रहे हैं। अब कुरान तू ही बता इनकी ये मोहब्बत का नतीजा क्या है? तो कुरान कहता है इनको मुर्दा मत कहो, इनको मुर्दा मत कहो। ये दुनियावी नोटों से अपनी जेब गरम नहीं कर रहे, बल्कि मुस्तफा के इश्क से अपने सीने को गरम कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फैजान मखदूम अशरफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सीने से गरम करने का नतीजा ये है, अपने सीने को गरम कर रहे हैं। क्या गरम कर रहे हैं? सीने को क्यों गरम कर रहे हैं? मुहद्दिस आज़म कहते हैं ये जो दिल है ना, सारा मामला दिल मुकल्लफ नहीं है। मोहब्बत करना इसका बंदा मुकल्लफ नहीं होता। मिसाल के तौर पर किसी के 4 बेटे हैं, चारों के साथ इंसाफ करना वाजिब है, लेकिन चारों से बराबर मोहब्बत करने का मुकल्लफ नहीं है। ये मसला है कि ये तबीई चीज है, किसी से ज्यादा होती है, किसी से कम होती है। दिल का मामला बहुत सख्त है। रईसुल मुनाफिकीन सुना होगा, रईसुल मुतकल्लिमीन सुना होगा, लेकिन एक रईसुल मुनाफिकीन भी अब्दुल्लाह बिन अबी जबान से बहुत कह रहा था हम ईमान लाए हैं, हम ईमान लाए हैं। साहबा से
लेकिन रसूल कहते हैं इसका दिल काला, इसकी ज़बान का एतबार नहीं है, इसका दिल काला है, इसलिए मुनाफिक है, इसका एतकाद जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो दिल का मामला सबसे अहम है, इसीलिए उलमा ने और इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमा दिया फिक़ह का सबसे अकीदे पे मबनी अहम मसला कि ईमान नफ्स ईमान नाम है, तस्दीक दिल जनान। अगर दिल से कबूल ना करे और ज़बान से कर ले और अमल करे, कुछ लोग तो इतना नमाज पढ़ के दिखाते हैं, एक जमात है ये मुकद्दर अपना उन्हीं ने अपना लिया है कि वो खुद दिखा के पढ़ते हैं, अगर कोई ना देखे तो वो पकड़ के लाके दिखाएंगे, देखो हम पढ़ रहे हैं, देखो देखो हम इज्तिमा कर रहे हैं, 40 दिन का इज्तिमा कर रहे हैं। लेकिन हम वो हैं जो सिर्फ दिखावे में मबनी बात नहीं करते, अगर कोई अमल करते हैं तो उस अमल को पहले दिल में, जब दिल में मुस्तफा दाखिल होते हैं तभी दावा करते हैं हम गुलाम मोहम्मद हैं, जब दिल में इमाम हुसैन दाखिल होते हैं तभी दावा करते हैं हम गुलाम हुसैन हैं, जब दिल में अहले बैत की सीरत सहाबा की सूरत दाखिल होती है तभी हम कहते हैं हम गुलाम सहाबा गुलाम पंजतने। तो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं दिल की दुनिया को अंधेरे से बचाए रखिए, दिल की दुनिया, दिल की दुनिया अलग है, वरना अब्दुल्ला बिन अबी से बड़ा कोई बुजुर्ग ना, मार खा गया दिल की दुनिया, लालच आ गई ना, यहूदियों ने लालच दी, और साथ ही साथ दिल की दुनिया को अंधेरे से बचाने की दुआ करेंगे तो साथ ही साथ इस बात पर ईमान होना चाहिए कि यादें अहमद की शमा दिल में जगाए, यादें अहमद की शमा दिल में जगाए रखिए, लज्जते दुनिया तो फानी है मिट जाए। यजीद लूटने आया था, खूब लूटा, अली अकबर की जवानी लूटने की कोशिश की, अली असगर के बचपने को लूटने की कोशिश की, हजरत अब्बास की शुजाअत को लूटने की कोशिश की, 72 के उस शुजाअत उस ताकत को लूटने की, उनकी शख्सियत उनकी जात उनके जिस्म की खूबसूरती को लूटने की कोशिश की, इसीलिए चारों तरफ तलखीरों की बारिश की। लेकिन देखिए यजीद लूटने के मकसद से आया था तो लूट रहा है, सरकार फरमाते इन्नमल अमालु बिन्नियात, लूटने की नीयत से फौज आई थी, लूट रही है, और मेरा हुसैन अहकामे दीन के मसाइल को फैलाने के लिए अपने खानदान को लुटाने आया था। तो कुरान ने कहा जिंदा हो, और अब लुटा दिया है। यजीद का जो मामला है दुनिया तक रह गया, जितना कमाना था कमा लिया, कब्र में लुटा जाएगा। अरे हुसैन, तुमने अपने खानदान को, अपनी साथ को, अपने पूरे खानदान, पूरे कबीले को, पूरी लश्कर को करबला के मैदान में मुस्तफा की मोहब्बत में, रब की वहदानियत की मारिफत में लुटाया है। अब जान लो ये रिस्क देने वाला अल्लाह है। अल्लाह फरमा रहा है शोदा को रिस्क दिया जाता है। कट गए हैं अल्लाह की राह में, शहीद हो गए हैं अल्लाह की राह में, फना हो गए हैं अल्लाह की राह में, लेकिन रिस्क दिया जा रहा है। पता चला ये मसला इतना है, जो यकीन की राह में चल पड़े उन्हें मंजिलों ने बना दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो यजीद की तरफ बह गए, वो यजीद की तरह बह गए। और क्यों ना बहके? क्योंकि उनकी नियत दुनिया थी। और मैं नहीं बताया हमारा ख्याल दीन है, इसीलिए हम ख्याल नमाज में जाते हैं तो दीन को सोचते हैं, हम अपने घर में जाते हैं तो दीन के बारे में सोचते हैं। हमने सिद्दीक़ अकबर के बारे में सोचा तो वो भी दीन के बारे में सोचना था, हमने फारूक आज़म के बारे में सोचा तो वो भी दीन के बारे में सोचना था, हमने हज़रत उस्मान गनी के बारे में सोचा तो वो दीन के बारे में सोचना था, हमने मौलाए कायनात के बारे में सोचा तो दीन के बारे में सोचना था, हमने सहाबा के बारे में सोचा तो वो दीन के बारे में सोचना था। हज़रत अबू हुरैरा को याद किया तो दीन के लिए याद किया, हज़रत अबू सौले को याद किया तो दीन के लिए याद किया, हज़रत अबू हुरैरा को याद किया तो दीन के लिए याद किया, हज़रत अमीर मुआविया को याद किया तो दीन के लिए याद किया, हज़रत हसन को याद किया तो दीन के लिए याद किया, हज़रत साद को याद किया तो दीन के लिए याद किया, हज़रत अमर बिन आस को याद किया तो दीन के लिए याद किया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को याद किया तो दीन के लिए याद किया, हज़रत अब्बास को याद किया तो दीन के लिए याद किया, और आज़म को याद किया तो
दीन के लिए याद किया, इमाम आज़म को याद किया तो दीन के लिए याद किया। हम अपनी इमामत और अपनी मनसब को बचाने के लिए इस्लाम के लिए कुर्ता नहीं पहनते, हम रसूल आज़म के किरदार को फैलाने के लिए दीन। सुभान अल्लाह। हम मजलिसों में इज्तिमा इसलिए नहीं करते कि कितने लोगों को जोड़ लेंगे, हम 5 भी होंगे तो भी दीन की बात करेंगे, हम 50 भी होंगे तो भी दीन की बात करेंगे। और याद रखना, मेरे हुसैन ने बता दिया कि कोई तादाद है। अभी हम आ रहे थे तो एक शख्स ने कहा कि हजरत आबादी छोटी है तो उसी हिसाब से लोग जैसी आबादी है शहरों में ज्यादा होगी। तो मैंने कहा देखिए तादाद पर हम कभी नहीं गए। बदर में 313 थे लेकिन रसूल की तबलीग का नतीजा थे, करबला में 72 थे रसूल की तबलीग का नतीजा थे। और हम तादाद में कम भी होते हैं तो भी चमकते हैं, नूर एक ही होता है लेकिन सारे आलम में चमकता है। और देगर अमेरिकन डायमंड वाले नग बहुत होते हैं लेकिन लोग सिर्फ अपने बटन और कुर्ते ही में लगाते हैं। आइए तबलीग करिए और जाइए। और औलिया अल्लाह से होते हैं, ये जाते हैं तबलीग करने तो तबलीग करके निकल जाते हैं, 40 दिन का कोर्स पूरा हुआ और हमारे औलिया किराम जब आते हैं तो 2 ही दिन का कोर्स करते हैं, 2 ही मिनट का कोर्स करते हैं। गरीब नवाज ने उस स्वामी को देखा, एक लम्हा देखना था सारा कोर्स। तो यकीन जानिए अपनी किस्मत पे नाज करो सिंहपुर वालों, तुम हुसैनी हो। और नाज करने के साथ साथ जितना मैंने कहा है उस पर अमल भी करो, वरना ऐसा ना हो तबलीग वाले आ जाए नहीं ये तो हमारी वैरायटी हो गई, उनकी वैरायटी नहीं बल्कि अपनी वैरायटी बनो। यहाँ पर हो तो जिक्र हुसैन को सुन रहे हो तो सुनकर इन उलमा के अक़वाल को सुन रहे हो, नात मनखबत को सुन रहे हो तो सुनकर सिर्फ 2 मिनट के लिए मोहब्बत को उजागर ना करो, बल्कि मोहब्बत का निशाना ऐसा हो कि तुम्हारा दिल ऐसा आईना बन जाए कि जब दूसरा कोई देखे ना, जिसकी दिल में तारीकी हो, दिल सिया हो, तो उसका दिल भी मुनव्वर हो जाए। तुम मखदूम अशरफ के दीवाने हो, तुम गौसे आजम के दीवाने हो, तुम आला हजरत अहमद वला फाजिल बरेलवी के दीवाने हो, तुम मुहद्दिस आजम के फिक्र के परवाने हो, तुम बाबाए मिल्लत की मेहनत हो। मोहसिन आजम मिशन का मकसद जो है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि तुमको लंगर दे और खा लो और चले जाओ। मिशन का मकसद जिक्र हुसैन से जो नतीजा जो तबलीग मिलती है उस तबलीग की बका है। यानी देखो रसूल आजम ने जिस एहसान किया है कि नहीं, कौन मानता है कि एहसान नहीं किया? कोई है कोई जो कहे एहसान नहीं किया? रसूल आजम ने एहसान किया है, एहसान अजीम किया है। तो शायद कहता सारे आलम को वो एहसान किए बैठे हैं, सारे आलम को वो एहसान किए बैठे हैं। उनकी महफिल में जो आए उसे सुल्तान किए बैठे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, उनकी महफिल में वो आए उसे सुल्तान किए बैठे। अरे 2 मिसरा समझो, मोहसिन आजम मिशन क्या है? मोहसिन आजम कौन है? मोहसिन आजम अब्दुल्ला मियाँ है, हजरत है कि हमारे पीर साहब हैं कि हमारे दादा पीर साहब हैं? कौन है? रसूल पाक है। सारे इंसानियत ही नहीं पूरे आलम पर एहसान करने वाले रसूल पाक। और ये भी पूछते हैं कुरान से क्या जो मौलाना कह रहे हैं सही है? कैसे मानने हैं? आजकल बहुत वक्त निकल रहे हैं, अब तो हर चीज कुरान ही से पूछना पड़ेगा। कुरान कहता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और अल्लाह ने रसूल आज़म को मबूस किया है तो ऐ आलम तेरी रहमत बना, तुझे तेरे लिए रहमत बनाकर तेरी तबलीग के लिए, तुझे रोशन करने के लिए, तुझे नफा देने के लिए, तुझे फलाह पहुंचाने के लिए, तुझे कामयाबी देने के लिए अब मेरा रसूल मबूस हो गया है। परेशान ना हो, ये मोहसिन आज़म है, एहसान करता रहेगा अलग अलग तंजीमों के जरिए, अलग अलग मुहिम के जरिए, अलग अलग कमेटी के जरिए, अलग अलग गिरोह के जरिए, लेकिन ये एहसान मेरे हबीब का रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहसिन आज़म और मिशन किसका है? रसूल आज़म का है। यही वो मिशन था जो बदर में था। ये अलग बात है, नाम अलग था
تو جتنے مشن رسول اعظم کا کام کر رہے ہیں وہ سب رسول اعظم یعنی محسن اعظم ہے. یہی مشن تھا جو خیبر میں تھا، یہی مشن احد میں تھا، یہی مشن کربلا میں تھا، یہی مشن بغداد میں تھا، یہی مشن اجمیر میں تھا، یہی مشن دلی میں تھا، یہی مشن کشمیر میں تھا، یہی مشن بر صغیر کے کونے کونے میں تھا، یہی مشن بریلی میں تھا، یہی مشن کچھوچا میں تھا، یہی مشن سنگھ پور میں ہے. کیا ہے؟ امن محبت کی چھاؤ، خدمت و صبح و شام کرے. سبحان صبح اللہ. اور شام کیوں کہا؟ ارے دن میں خدمت ہوتی ہے نا، رات کو سونے کے لیے ہوتی ہے. میرے امام حسین نے رات میں بھی خدمت کی ہے دین کی. رات امام حسین کی بستر پہ نہیں بلکہ معرفت خداوندی میں گزری، رسول کی محبت میں گزری ہے، اپنے اصحاب کی تبلیغ میں گزری ہے. اس لیے اپنا محبت کی چھاؤں میں خدمت و صبح و شام کرے. آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا ہی امام حسین کہہ رہے ہیں اپنے الفاظ میں، میں اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کر دے رہا ہوں. وہاں سے ایک سپہ سالار دوڑتے ہوئے چلا گیا. لوگ کہہ رہے ارے یہ کون آ رہا ہے؟ دیکھا حضرت حر آ رہا ہے. حضرت حر آ رہے ہیں. ابھی حضرت نہیں ہوئے تھے اس وقت. حر آ رہے ہیں. یزید ڈر کر یہ کیا لگ رہا ہے حر کاٹنے جا رہا ہے. یزیدی لوٹنے آئے تھے تو کہہ رہے ہیں حر کاٹنے جا رہے ہیں، اور حسینی لٹانے آئے تھے تو کہہ رہے ہیں حر کٹنے آ رہے ہیں. حضرت حر تشریف لاتے ہیں. اے امام پاک مجھے معاف کر پائیں گے؟ میں جانتا ہوں میرا گناہ بہت بڑا ہے. کھڑا کس کے سامنے؟ فرزند رسول کے سامنے. کھڑا کس کے سامنے ہو جو سراپا دین میں ہے؟ کھڑا کس کے سامنے ہو جو رسول کی شریعت کی عظمت کو بچانے آیا ہے؟ کھڑا کس کے سامنے ہو جو رسول کی رسالت کی عظمت کو بچانے آیا ہے؟ کھڑا کس کے سامنے ہو جس کے بابا نے خیبر میں اسلام کو بلندی تک پہنچانے کی کوشش کی؟ کھڑا کس کے سامنے ہوں جس کے بھائی نے صلح کر کے اسلام کو ایک بڑے فتنے سے بچایا ہے؟ کھڑا کس کے سامنے ہوں جس کی ماں نے اسلام کو اتنے بڑے جوہر دیے ہیں؟ کھڑا کس کے سامنے ہوں جس کے نانا نبیوں کے تاجدار ہیں؟ کھڑا کس کے سامنے ہوں جس کو صدیق اکبر کی محبت ملی ہے؟ کھڑا کس کے سامنے ہوں جس کو فاروق اعظم سے محبت ملی ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ حضرت حر دیکھ رہے ہیں. حضرت امام حسین سے عرض کرتے ہیں میری غلطی کو معاف کر دیں گے؟ کہا کہ غلطی کو معاف کر دیں گے. یہ دیکھیے جگر حسین کیوں نہ ہو رحیم کا بندہ ہے. ایک وہ رحیم جس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اس کی رحمت جیسی کسی کی رحمت نہیں، اس کے رحیم ہونے کے جیسا کوئی رحیم نہیں، لیکن جسے وہ عطا کر دے. ایک وہ رحیم جس کو اس نے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس خدا رحیم کا بندہ ہے اور اس مصطفیٰ رحیم کا نواسا. خود بھی حسین رحیم، کیونکہ اچھوں کی صحبت میں رہنے سے انسان اچھا ہو جاتا ہے. نیکوں کی رحمت میں، نیکوں کی صحبت میں رہنے سے انسان نیک ہو جاتا ہے. امام حسین مصطفیٰ کی صحبت میں رہے تھے. فتح مکہ کے وقت میں کچھ لوگ تھے جنہیں نے حضور اعظم سے سوال کیا تھا کہ سرکار بتائے ہمارا گناہ بڑا ہے، کیا ہم ایمان لائیں گے؟ ہم معاف کر دیں گے؟ ہاں ایمان لے آؤ، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضرت امام حسین نے حضرت حر کی بات سنی، کہا جاؤ رسول کے دین کی طرف آ جاؤ گے تو سارے. ادھر حضرت حر آئے تو دنیا نے دیکھا کہ کیسے اللہ والے جہنم. حر نے بتایا یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حضرت امام حسین کی طرف جب حضرت حر آئے، یزیدی کہہ رہے ہیں ارے حر کو نہیں پہنچا. ارے لفافہ کیسے پہنچتے؟ میں نے اپنے تقریر میں پہلے کہا تھا سارا کھیل قدرت کا ہے. قدرت نے حر کو غلامی حسین کی غلامی میں چنا تھا. لفافہ حر تک کیسے پہنچتا؟ اور اگر پہنچ گیا تو وہ لفافہ کیسے اثر کرتا؟ ارے حر کے پاس تو جنت کا لفافہ. قرآن نے کہا ہے حر اپنی قسمت پر ناز کر، تو نے تو آگ کو بھی دیکھا اور آگ سے نکل کر جنت میں جانے کو. نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری. سبحان اللہ.
ختم کر رہا ہوں 1-2 سینٹنس میں، ہو سکتا ہے 2 سے 3 ہو جائے، 2 منٹ میں۔ حضرت حور آئے، آگ سے نکلے روشنی کی طرف، آگ سے نکلے ٹھنڈک کی طرف۔ حضرت امام حسین کی غلامی میں آئے تو قرآن نے کہا حور کو مردہ مت کہنا، حور زندہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیسے حور زندہ ہے؟ حور تو لاسٹ میں آئے ہیں، کیسے حور کو زندہ مان لے؟ تو قرآن نے کہا دیکھو، قرآن جب کہہ رہا ہے زندہ ہے، حور کو مردہ نہ کہنا۔ کیوں نہ کہنا؟ کیونکہ حور اللہ کی راہ میں قربان ہوئے ہیں۔ تو اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کی راہ میں حور قربان ہوئے ہیں تو حور کے دل کی دنیا کو کس نے بدلا؟ تو قرآن اشارہ کر رہا ہے، ظاہر تو وہاں پہ نہیں ہے، لیکن ہر چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کچھ بات دل کی ہوتی ہے۔ حور کے دل پر امام حسین کی نگاہ پڑ گئی تھی، اب حسین کی محبت نے حور کی دنیا کو بدلا۔ تو میں کیسے جانوں کہ حور فلاں محبت سے فلاں مل جاتی ہے؟ تو رسول اعظم سے پوچھا جائے کیسے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام حسین سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ اہل بیت کی محبت میری محبت، میری محبت خدا کی محبت۔ اور میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو ہی بتا خدا سے کیسے محبت کرے؟ تو خود قرآن فرماتا ہے اشد حب اللہ، سبحان اللہ، اشد محبت اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ کی محبت کی بات آئے تو یہ نہ سوچنا کتنا کرنا ہے، بلکہ خود کو لٹا دینا، خود کو قربان کر دینا۔ خود نے اللہ کی محبت میں حسین کو ذریعہ بناتے ہوئے اللہ کی محبت کو حاصل کیا، کربلا میں قربان ہوئے۔ قرآن نے بھی کہہ دیا اے حور تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، جیسے مصطفیٰ زندہ ہے۔ اب سوچو جب حور زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے جب وہ حور زندہ ہے جو ایک لمحے میں نار سے نکل کر جنت کی طرف آئے ہیں، تو حور کا جو آقا ہے، جو اماموں کا امام ہے، سید الانبیاء ہے، تاجدار نبوت ہے، اس کی زندگی میں کیسا شک؟ اسی لیے میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فرما دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم اعلیٰ سے چھپ جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تیری محبت کس میں ہوگی؟ اور میں نے کیا بتایا؟ رسول نے فرمایا حسین کی محبت میری محبت، یعنی حسین کی محبت جس میں ہوگی وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے۔ ایسی محبت نے حور کو بھی چمکا دیا، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اے آقا حسین ہمارے قلوب کو بھی برستا نہیں دیکھ کر اب رہے آئے ہیں یہاں پر، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پہ بھی برسا دے۔ اب آقا برسا دیجئے، اور کیونکہ برسنے والا ہے دعا ہونے والی ہے، کیونکہ دعا ہی سے برستا ہے۔ دعا کرو، قرآن نے کہا دعا کرو اپنے لیے، رسی کو پکڑو اور اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ، نیکوں کی صحبت اختیار کر لو، اللہ کا ذکر کرو۔ میں نے بتایا کہ حسین کا ذکر رسول کا ذکر، رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون دے۔ بس یہی سمجھ لیجئے، اگر جنت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، رسول کی محبت چاہتے ہو، تم تو رسول سے کرو، رسول بھی کریں، تو سمجھ لو ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ سے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔